Okay. So yeah. So my name is Anish Kumar and I'm working in Google right now as a software developer. So Google के अंदर I'm working on a payments platform where we are handling all kind of payment transaction. It's not Google. First of all, it's not Google Pay. So we are handling all kind of payment transaction that is happening in Google across the all the platform. Okay. सो मैं उस पर्टिकुलर टेक स्टैक के ऊपर काम कर रहा हूँ एंड टुडे हियर आई एम टू टीच यू और गाइड यू कि how to get place in these product-based companies like Google, Microsoft, Amazon, and there are lots of other good product-based companies, right? तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत इसके ऊपर गाइड करूंगा। उसके बाद देन ऑफ कोर्स आपको कुछ डाउट्स आएंगे, मैं आपके डाउट्स भी लूंगा एंड आई ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स बिकॉज आई नो आपके डाउट्स क्या आने वाले हैं कि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ या फिर आई एम फ्रॉम MCA, आई एम फ्रॉम BCA, आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर दिस ब्रांच, आई एम एलिजिबल और नॉट। और मे बी आपके ऐसे डाउट हो सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2-3 year in non-tech background, should I eligible to get place in these companies? तो इन सब के आंसर मैं इसी सेशन में करने की कोशिश करूंगा बिकॉज दीज आर द मोस्ट जेनरिक क्वेश्चन, राइट? तो ये मैं यहीं पे कर दूंगा आंसर। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होंगे देन यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स एंड मैं एक एक करके उसको आंसर करता चला जाऊंगा, राइट? ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। सो एक बार मुझे हेड्सअप दे दो फिर मैं आगे चलता हूँ। चैट बॉक्स इनेबल्ड, ठीक है। सबसे पहले ना स्क्रीन शेयर करेंगे अभी क्योंकि मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा ताकि मैं लिख के आपको दिखा सकूं और वो करेंगे अभी। सो अभी उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि यार इफ वी आर प्लानिंग टू गो इनटू पर्टिकुलर these kind of we are targeting these kind of companies, so the few things that matter to us is like of course college background of course matter, but it's not only the thing that is matter to all at all, but the other things are also matter. Like so first of all is data structure algorithm. Data structure algorithm is one of the crucial part in the interview process. Not in the interview process, it's going to be used in the company. Maybe you heard somewhere or maybe on LinkedIn or maybe on some other YouTube post that these are the things not going to be practically used in the company, but they are used. Their concepts going to be used, not the implementation part. Yeah, I can't talk in like at the same time English and Hindi, so I preferly go with English, in which little bit of English and little bit of Hindi. I think everyone is comfortable over it. ठीक है, so it's not going to be complete English and it's not going to be complete Hindi. We are going to follow in medium of it, right? So अब सबसे पहले बात करते हैं, लाइक मैं अपनी जर्नी बताता हूँ फिर अपने कुछ दोस्तों की जर्नी बताता हूँ। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट? बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन ओनली माई जर्नी देन इट्स मे बी डिफरेंट। इफ आई एक्सप्लेन माई फ्रेंड जर्नी उसकी थोड़ी अलग सिचुएशन होगी एंड आई ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दोज बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से थे या टेक से थे या उनकी ब्रांच मैकेनिकल थी या देयर ब्रांच हैव अ सिविल इंजीनियरिंग और दे हैव अ बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। सो आई नो पीपल्स हु गेट प्लेस इन दिस कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट लिटिल बिट फ्रॉम माय बैकग्राउंड सो दैट इट्स अ कंप्लीट काइंड ऑफ स्टोरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे क्या हुआ था। So back in 2016, I'm in the college, right? And in the first year, when I start my college journey, so at the time, we at that time just coding is introduced in the environment, right? So there's code chef and code forces ऐसी चीज ना इतनी hype पे नहीं थी at that time, and the lead code is about to form, मतलब lead code बना हुआ था but it is not popular so much in India. So lead code is a platform in which you can practice DSA problem, right? So at the same kind of platform like Geekster भी आपको provide कर रहा है, उसके अंदर भी आप उसी टाइप की चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर प्राइवेट सेशन लेता है तो उसके अंदर उसको प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, ऐसे सेम चीज लीड कोड के ऊपर भी होती थी। एंड द मोस्ट पॉपुलर थिंग एट द टाइम इज गीक फॉर गिग्स। सो वहां पे क्या होता था, वहां पे हम प्रैक्टिस क्या करते थे। सो देयर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक प्लान टू गो इन लाइक जैसे उसको किसी को एमटेक करनी है, देयर सम ऑफ द पीपल्स आर प्लानिंग फॉर MBA एंड द फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एट द टाइम आर इन द मैकेनिकल ब्रांच एंड फ्यू आर इन द इलेक्ट्रिकल एंड सम आर इन द बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, राइट? अब बायोटेक पीपल इज नॉट एलिजिबल फॉर दीज IT कंपनीज, ट्रू? बायोटेक वाले तो एलिजिबल नहीं है ना। एट द सेम टाइम मैकेनिकल पीपल्स आर ऑल्सो नॉट प्रेफर्ड फॉर दीज IT कंपनीज, करेक्ट? बट all of them are placed, मतलब all of them are placed in good companies. Like जो मेरा मैकेनिकल फ्रेंड था, he is placed in Amazon, and the guy from biotech branch, he is placed in the Walmart. So he's working in Walmart. Just a minute, कोई कुछ पूछ रहा हो? गाइस अभी करूंगा, अभी क्वेश्चन मत पूछो, मतलब एट द सेम टाइम व्हेन आई स्पीकिंग आई कांट आंसर द क्वेश्चन ना। सो करते हैं, बात करते हैं, ठीक है? नहीं यार, आई एम नॉट फ्रॉम NIT, आई एम फ्रॉम NSIT। सो
अब हुआ ये कि ये जो टोटल ब्रांचेस थी, अब ये ब्रांचेस ना मैटर करती थी, ऑफ कोर्स थर्ड ईयर तक मैटर करती है। सो मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू कवर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, मे बी विच लाइक ही और शी इन द कॉलेज, मे बी पास आउट होंगे, मे बी कुछ एक्सपीरियंस ईयर के होंगे। तो ना थर्ड ईयर तक चीजें मैटर कर रही थी। थर्ड ईयर तक ये था कि जो मेरा मैकेनिकल का फ्रेंड था, ही नॉट एबल टू क्रैक इंटर्नशिप इन द थर्ड ईयर। एट द सेम टाइम बायोटेक वाला दोस्त भी वो इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर पाया, बिकॉज इन विद इन द कॉलेज द प्रीफर्ड गाइज आर आईटी और सीएससी ब्रांच, राइट, कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफरेबल थे। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, which is genuine thing, by of course genuine thing आप internship के लिए, because they're limited companies. But as soon as they got like pass out from the college in 2020, when सब college से बाहर निकले, within 3 months हमने देखा कि ना there are bunch of companies outside, like outside the college, बहुत सारी कंपनीज है ऐसे ना जिनके रोज लिंक्डइन पे मेल आ रहे हैं, मतलब लिंक्डइन पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी, वुड यू लाइक टू गिव अ इंटरव्यू कॉल, ऐसे आ रहे इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, वुड यू लाइक टू गिव टेस्ट, एक बार टेस्ट दे के देख लो, ऐसे भी कॉल आ रहे हैं कि चलो हम आपका टेस्ट स्किप करवा देते हैं, आप सीधा इंटरव्यू में आ जाओ। तो कुछ कॉल हमें ऐसे भी आए थे उन दोस्तों को। तो विच इज अ काइंड ऑफ शॉकिंग, बिकॉज कॉलेज में हमें कोई भाव भी नहीं दे रहा था, एंड जैसे ही हम कॉलेज के बाहर निकले, मैकेनिकल और ये कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और बायोटेक ब्रांच वाले जो दोस्त थे, उन लोगों को कंपनी से कॉल आने लग गए थे। सो एक चीज उस दिन मुझे समझ में आई कि कॉलेज के अंदर जितनी कंपनी आती है ना, ऑफकोर्स वो बहुत सारी होती है, मैटर करती है, वहां पे प्लेसमेंट नहीं लगती तो बुरा लगता है। पर कॉलेज के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, जहाँ पे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, इफ यू हैव अ डिसेंट प्रैक्टिस और डिसेंट स्किल्स अगर है, तो ये पक्की बात है मिल जाएगी जॉब। अब वो डिसेंट स्किल्स क्या गैदर करनी होती है आपको? अब डिसेंट स्किल्स क्या है? अब बिकॉज एट दिस स्टेज, बिकॉज अब मैं बिगर पिक्चर पे देखता हूँ, मतलब राइट नाउ हैव एक्सपीरियंस, राइट, सो ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इस 3 साल का एक्सपीरियंस के लेवल पे जब मैं उठ के देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि कुछ चीजें हैं, सिर्फ इफ यू आर गुड इन डेटा सर्च एंड एल्गोरिथम ना, दिस इज नॉट ओनली थिंग दैट यू गेट प्लेस इन द कंपनी, मे बी यू गेट प्लेस इन द कंपनी, बट आप शायद कंपनी में प्लेस होने के बाद अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, बट शायद आप लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। तो कुछ चीजों के ऊपर जो ध्यान देना होता है कि नंबर वन इज ऑफकोर्स डेटा सर्च एल्गोरिथम इज द की फैक्टर टू गेट प्लेस इन दिस कंपनी। अब डेटा सर्च एल्गोरिथम के अंदर भी स्पेसिफिक किस चीज की बात करूंगा मैं, उसके अंदर बात करना चाहूंगा मैं, लाइक एरे स्ट्रिंग हो गया, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया। अब वाई ग्राफ एंड डीपी, वाई एवरी कंपनी आज ग्राफ एंड डीपी? बहुत सारी कंपनी ना सिर्फ ग्राफ ही पूछती है, बहुत सारी कंपनी सिर्फ डीपी ही पूछती है। उसके पीछे लॉजिकल रीजन है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ गूगल की बात करूं, गूगल इज मोर फोकस्ड टुवर्ड ग्राफ एंड बाइनरी सर्च। अब इट इज इसका इसका एक रीजन है, बिकॉज गूगल के अंदर अपना खुद का टेक स्टैक है। बेसिकली वी यूज जावा टू कोड आर एनी पर्टिकुलर फीचर और एनी टू रिजॉल्व एनी बग, बट वो जावा ना कुछ अलग तरीके से बना रखी है। मतलब जावा है, उसके ऊपर कुछ रैपर क्लास रखी है, एंड वो जावा अब जावा नहीं रही है, मतलब अलग सी बन चुकी है जावा, उसकी थोड़ी ज्यादा फीचर्स आ गए हैं। एट द सेम टाइम वी हैव सम फ्रेमवर्क्स विच इज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड, वी हैव सम डेटाबेस विच इज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड, जो सिर्फ गूगल के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो बट वो सब चीजों के ऊपर ना अब एक नई कोई टेक्स्ट जब लिखने जाते हैं, तो वो टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर डीएसए के ऊपर ही बिल्ड की जाती है, इसी डीएसए के किसी पर्टिकुलर फीचर या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके बिल्ड किया है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है जिसके ऊपर मैं कुछ दिन पहले काम कर रहा था, वो ना ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, ट्री और हैश मैप के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। बिकॉज आई नो वो ट्री और हैश मैप के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, तो मैं उसको डेप्थ में समझ पाया। मैं ये समझ पाया कि यार अच्छा ये ट्री और हैश मैप के ऊपर है, तो अगर मैं इसके अंदर इस टाइप का डेटा सेट डालता हूँ और इस टाइप की क्वेरी लगाता हूँ, तो ये रिस्पॉन्स मुझे कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेगा, राइट। कुछ ऐसा, मतलब कंप्लीट डेप्थ में नहीं बता सकता हूँ बिकॉज इज अगेंस्ट द पॉलिसी, बट मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। बट वो क्वेरी किस तरीके से लगानी है ये मैं तभी समझ पाऊंगा ना जब मुझे उसका बेसिक डेप्थ पता होगा। तभी तो क्वेरी लगाना इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑप्टिमल क्वेरी करना इज अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए कंपनी डेटा स्ट्रक्चर पूछती है। अब वो डेटा स्ट्रक्चर जिस पे बना हुआ है वो ट्री है। अब कुछ यहाँ पे ऐसे भी टेक स्टैक हैं जिसके अंदर ग्राफ यूज होता है। अब नॉट इन गूगल, इवन इन Amazon और माइक्रोसॉफ्ट और सम अदर स्टार्टअप, वो भी ना कुछ इस टाइप के डेटाबेस यूज करते हैं जो कि ग्राफ के ऊपर, जैसे वो ग्राफ एसक्यूएल कहते हैं, उनके ऊपर बना होता है। अब वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना मुझे ग्राफ की, तभी तो मैं उसको ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा लेटर ऑन। कभी मुझे बोला गया कि यार आज ना आप 1 मिलियन डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, लेट्स से कुछ दिनों बाद आपका स्केल 1 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन हो जाता है,
तो अब आपको अपना डेटाबेस माइग्रेट करना पड़ेगा, या इसी डेटाबेस को एग्जिस्टिंग को इस तरीके से ब्रेक करो कि 10 मिलियन क्वेरी, 10 मिलियन यूजर्स के डेटा को मैं हैंडल कर पाऊं। अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये अगेन कौन सॉल्व करेगा? अगर मुझे ग्राफ की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, अगर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मैं नहीं कर सकता हूँ सॉल्व। राइट, दिस इज एग्री। सो दैट्स व्हाई people are used to ask like DSA problem in their interview call. But this is not the only way to get placed in the company, right? Because DSA can help you to solve particular problem or particular statement, but DSA can't be help you to build that particular feature. अब उस पर्टिकुलर फीचर को बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होती है डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस, जो कि होती है मे बी जावा। जावा से हम डेव साइड कर सकते हैं, कोई भी बैकएंड जावा संभाल देगा, बट एट द सेम टाइम जावा स्क्रिप्ट हो गया, नोड जेएस हो गया, दीज आर द लैंग्वेज विच हेल्प यू टू बिल्ड पर्टिकुलर फीचर। राइट। तो दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास? पहले आ गई डीएसए, सेकंड वन आ गई मेरे पास जिसके अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट, बेसिकली वेब साइड लैंग्वेजेस या बिल्ड करने वाली डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, इनका यूज करना पड़ेगा। सो दिस आर टू थिंग्स। अब थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ वी आर वर्किंग एट अ वेरी स्मॉल स्केल। मैं आपको ना पहले वो बता रहा हूँ कि रीजन कि क्यों चीजें पूछी जाती है। अगर आपको रीजन पता होगा तो आप तैयारी उस हिसाब से कर पाओगे। बिकॉज इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गूगल तो मैं ऐसा करूंगा कि यार मैं वो चीजें सीखना पसंद करूंगा जो गूगल के लिए रेलिवेंट है, बट एट द सेम टाइम इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेटफ्लिक्स और मे बी हॉटस्टार, तो मैं वो चीजें प्रिपेयर करूंगा जो उनकी कंपनी के लिए रेलिवेंट है। राइट। अब जैसे कि गूगल के अंदर काफका करके एक चीज है, एक काफका एक लाइन, एक पर्टिकुलर आप पढ़ना काफका के बारे में, तो काफका गूगल में यूज नहीं होता इतना, बट वो बाहर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत किसी मतलब काफका इज नॉट द ओनली थिंग जो गूगल में यूज होता है बट इज नॉट द ओनली वन थिंग। बट कुछ कुछ कंपनियां सिर्फ काफका के ऊपर ही काम कर रही है। तो अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में जाना चाहता हूँ जो काफका के ऊपर काम कर रही है, तो मैं बोलूंगा मुझे काफका सीखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डीएसए एंड प्लस डीएसओ डेव साइड लैंग्वेज के साथ साथ मुझे काफका और सीख लेनी चाहिए, तो मैं मेरा एप्लीकेशन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ट्रू। राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें करने के बाद थर्ड, अब लेट्स टॉक अबाउट द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मींस राइट नाउ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर डेटा, अ पर्टिकुलर यूजर इन विच वी हैव अ यूजर ऑफ 1 मिलियन। राइट। सो मुझे सर्वर कैसे अरेंज करने हैं? जैसे कि आपने देखा होगा हॉटस्टार के ऊपर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो जब कोई ऐसा नॉर्मल मैच चल रहा होता है ना, सो एट द टाइम जो वहाँ पे यूजर्स होते हैं वो होते हैं 80 lakhs, मे बी 90 lakhs, कभी कभार 1 CR टच कर जाते हैं लाइव यूजर्स, कॉन्करेंट लाइव यूजर्स 1 CR टच कराना बहुत बड़ी बात है। एट द सेम टाइम व्हेन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सो ये यूजर बेस 2-2 CR तक टच करके गया है, सीधा डबल हो जाता है, डबल स्ट्रेंथ। तो ऐसा तो होगा नहीं, हॉटस्टार इतनी पागल तो नहीं है यार कि व्हेन देयर इज अ मैच ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उस टाइम पे 80 लाख का कॉन्करेंट यूजर लाइव बेस प्रेजेंट है, और मैंने सर्वर 2 CR के लगा रखे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द रेलिवेंट सॉल्यूशन। अगर मैंने 2 CR के सर्वर लगा दिए, 2 CR यूजर के लिए सर्वर लगा दिया, इट गोइंग टू बी कॉस्ट मी अ लॉट। इतना कॉस्ट तो बहुत बेकार है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो 80 लाख अगर यूजर हैं तो शायद मैं 80 लाख के हिसाब से अपने सर्वर लाइव करूंगा। बट अगर 2 CR मेरे यूजर है, मैं 2 CR के हिसाब से सर्वर लाइव करूंगा। बट देन यू हैव टू थिंक, तो क्या कोई पर्सन पीछे बैठा होगा जो बार बार ये सर्वर इंक्रीज कर रहा होगा? मतलब अच्छा अभी 80 लाख थे, 80 लाख वाला सर्वर ऑन करते हैं, चलो 90 लाख यूजर्स हो गए, 90 लाख का सर्वर ऑन करते हैं, चलो 1 CR लोग हो गए तो 1 CR का सर्वर ऑन करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, ये तो मैनुअल टास्क नहीं हो सकता। सो देयर सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, सम काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग काइंड ऑफ स्टफ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है हाई लेवल डिजाइन। तो यानी कि जब हॉटस्टार बनाया होगा तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया होगा, तो एक आर्किटेक्चर फील्ड यहाँ से अलग निकलती है। व्हेन अ पर्सन बिकम टू मच एक्सपीरियंस, ही ट्राई टू गेट इनटू आर्किटेक्चर फील्ड, बट आर्किटेक्चर में तो हमें नहीं जाना अभी, तो हमें क्या करना होगा? एलएलडी और एचएलडी। तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। एलएलडी एचएलडी बेसिकली जब मैं स्केलेबिलिटी की बात करूंगा, हाई लेवल डिजाइन किस तरीके से मुझे अपना सिस्टम डिजाइन करना है, दीज आर द थिंग्स। नंबर वन इज डीएसए, जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर टू आफ्टर डीएसए इज डेव साइड लैंग्वेजेस, कुछ भी हो सकती है जो आपको पसंद हो। थर्ड इज स्केलेबिलिटी, एनीथिंग बेसिकली सिस्टम डिजाइन के ऊपर मुझे काम करना है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू गेट प्लेस इन एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जिसके अलावा आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। जैसे कि मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं काफी कंपनियों के अंदर, तो मुझे पता है कि इसके अलावा कुछ कोई पूछता ही नहीं है। राइट। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस लेवल।
तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आइडिया लेना चाहता हूँ। ये तो जिस्ट था, मतलब दिस द स्टोरी ऑफ जिस्ट कि क्या चाहिए। अब मुझे आइडिया ये चाहिए कि इस समय स्ट्रेंथ कैसी आ रखी है यहाँ पे, मतलब कितने कॉलेज स्टूडेंट है, कितने पास आउट हैं। आपको बस इतना लिखना है, आम कॉलेज स्टूडेंट, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो नॉन टेक, अगर आप नॉन टेक कॉलेज से हो, कॉलेज स्टूडेंट और फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड तो आप लिख देना कॉलेज टेक, अगर आप पास आउट हो तो लिख देना है आई एम वर्किंग नॉन टेक कंपनी या वर्किंग इन टेक कंपनी, तो मुझे आइडिया सा लग जाएगा कि कैसा स्ट्रेंथ है। सम मैं भी ना चैट ऑन कर रहा हूँ, बस इतना ही करना और सवाल अभी मत पूछना, मैं आपके आंसर करूंगा। यार पास आउट वर्किंग इन सेल्स दिस गाय गणेश यार डोंट माइंड, पता है मेरा एक दोस्त है गूगल में ही है वो भी, uh, उसने 2 साल सेल्स करी थी, अभी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तू चाहे तो मैं बात करवा दूंगा तेरी, ऑफ कोर्स वो गूगल में सेल्स में था और इस वक्त अभी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यस, सिविल इंजीनियरिंग से याद आया, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज इन, मतलब ये था दिल्ली का कोई कॉलेज है वहां पे था, वहां पे सिविल इंजीनियर था। सो ही वांट टू बिकम एक्टर राइट, तो उसको ना फिल्मों में जाने का शौक था। काफी बॉडी वॉडी बना रखी थी एंड बस उसका वही था सपना, बट ऑफ कोर्स टू सस्टेन इन दिस फिल्म फिल्म इंडस्ट्री ही नीड अ जॉब। तो फिर उसने पता है क्या करा, आफ्टर 1 year passing out from 1 year, he start preparing for the tech companies. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, सेकंड सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, थर्ड एक्टर बनना है भाई को, फोर्थ पैसे का कोई सोर्स नहीं है बिकॉज फैमिली इज नॉट दैट रिच की सपोर्ट कर पाए, तो उसने क्या करा टेक कंपनी निकाली अमेजॉन। 1 साल अमेजोन में काम करा एंड ट्राई टू सस्टेन हिमसेल्फ, देन ही टेक अ वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मांगा कंपनी से, एंड अभी मुंबई बैठा है। मतलब एक्टर तो नहीं बना बट मुंबई में जाके स्ट्रगल कर रहा है। तो ये मुझे उस पर्सन के, मतलब ये चीज मुझे वहां से याद आई जब किसी पर्सन ने लिखा यहाँ पे कि वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। टू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, सिविल इंजीनियर 1 year बैक, मतलब 1 year गैप, गेट प्लेस इन अमेजोन, ठीक है, और जर्नी चल रही है उसकी। तो यू ऑलवेज हैव द सॉल्यूशन अगर आप ढूंढोगे तो, अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे ना कि मैं तो बीकॉम का हूँ मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। मैं अभी के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा ना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं कुछ लिख सकूं, लिख कर मजा आएगा। देखो सबसे पहले ना, नंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू गेट प्लेस, तो नंबर वन थिंग था हमारे पास डीएसए, इसके ऊपर बात करते हैं। सो डीएसए के अंदर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको टैकल करने हैं, फिर हम डीएसए के बाद जाएंगे एलएलडी एचएलडी के ऊपर बात करेंगे थोड़ा डेप्थ के अंदर, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू रेज्यूमे साइड एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू लिंक्डइन साइड, ठीक है, कि लिंक्डइन को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर मैं थोड़े लिंक्डइन के आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं लिंक्डइन वाले जो मैंने फिगर आउट करे थे, मतलब मुझे बाद में पता लगे कि यार ऐसा भी करा जा सकता है, तो मुझे नहीं पता कोई यूज कर रहा नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा आइडिया लगा था। नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द डीएसए। सो मैंने आपको डीएसए का सिग्निफिकेंस बता दिया, वाई कंपनी आज डीएसए, जैसे कि अभी ना कुछ एग्जांपल आया था। सो आई एम वर्किंग पर्टिकुलर ऑपरेशन जिसके अंदर ये हुआ था कि मुझे ना डेटा चाहिए था, तो मैंने ना 1 मिनट का डेटा फैच किया था, सिर्फ 1 मिनट का डेटा मैंने फैच किया था। तो ट्रांजेक्शन हुई थी अक्रॉस द गूगल, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन में फैच करना चाहता था, तो वो अक्रॉस द ग्लोब बिकता है। उसका 1 मिनट का जो ट्रांजेक्शन फैच करने में मुझे टाइम लग गया था ना, सिर्फ 1 मिनट, पास्ट 1 मिनट में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं मुझे 1 आवर लगे थे उस डेटा को फैच करने में, इतना बड़ा डेटा आया था। डेट समवेयर वैसे ना जीबी इसके अंदर डेटा चला गया था उसको सिर्फ फैच फैच करने में। अब ये देखो ना, वो फैच करने में सिर्फ 1 मिनट का डेटा फैच करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो सोचो अगर किसी को ऐसे 10 मिनट या एक दिन का डेटा फैच करना पड़ गया तो कितना टाइम लगेगा, एंड दे पर्सन हैव टू बिल्ड ग्राफ। देन ना आप लोगों ने सुना होगा कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब होती है, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा इसलिए होती है क्योंकि वी ट्राई टू बिल्ड सम काइंड ऑफ डैशबोर्ड इन विच वट एवर द डेटा वी फैच वी इनपुट इन द डैशबोर्ड, एंड डैशबोर्ड ट्राई टू डिपिक्ट ऑल ऑफ द डेटा इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफ। उस ग्राफ को देख के समझते हैं कि अच्छा ट्रांजैक्शन इसलिए डिनाई हो गई, अच्छा ट्रांजैक्शन इतनी डिनाई हो गई, इतनी सक्सेसफुल हो गई, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आके रुक गई, एंड यू कांट बिलीव एवरी काइंड ऑफ डेटा कंपनी ट्राई टू ट्रेस। मतलब कि जैसे कि मैं किसी ऐप के ऊपर जब गया ना, जैसे ही मैंने क्लिक करा वो डेटा ट्रेस हो गया कि भाई इसने क्लिक किया, अच्छा ये क्लिक करके इसने परचेज बटन को प्रेस किया था, ये डेटा भी ट्रैक हुआ कि ये परचेज बटन तक आया पर यहाँ से शायद इसके आगे शायद नहीं गया।
लाइक एग्जांपल के लिए, सपोज यू ओपन अ स्विगी ऐप, एंड स्विगी ऐप यू ट्राई टू स्क्रॉल डाउन, फिर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो एंड यू सेलेक्ट ऑल ऑफ द फूड आइटम दैट यू वांट टू ईट एट दैट टाइम, एंड देन गो फॉर द चेकआउट ऑप्शन, एंड सडनली यू गेट अ कॉल एंड आपने वहीं पे ड्रॉप कर दिया, वहां पे आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करा, तो ये डेटा यहाँ तक ट्रेस कर लिया। तो मुझे पता लगा कि यूजर ना बार बार क्या करता है, आता है चेकआउट पे जाता है और पैसे नहीं देता। तो क्या करें कि इसको पैसे ये दे दें, तो ऐसा क्या बिल्ड करें, ऐसा क्या करें कि ये ना यहाँ से ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके ही जाए। तो फिर आपने देखा होगा कि आज से दो दो साल पहले जो स्विगी पे जब हम पेमेंट करने जाते थे, तो चीजें ना क्या होती थी, मैं ऑटोमेटिकली जाके ना, ऑटोमेटिकली मैनुअली फिल करना पड़ता था ओटीपी, बट राइट नाउ एज सुन एज यू क्लिक ऑन द चेकआउट बटन और आपने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर बैंक से ट्रांजेक्शन करनी है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड। और ओटीपी आया, ओटीपी प्लेस मतलब ओटीपी पेस्ट भी हो गया उसके अंदर, एंड सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। सो एट द एंड बिजनेस पर्पज इज टू गेट मनी इन दी कंपनी, सिंपल, पैसा लेकर आ रहे हो, धंधा बना रहे हो, खत्म, इतना ही चाहिए, और यही सबका मोटिव होता है। सो डीएसए के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है हमारे पास एरे एंड स्ट्रिंग। ये आपको तो करना ही करना है, बिकॉज एरे एंड स्ट्रिंग इज द ओनली वे टू स्टोर डेटा, स्टोर ऑल काइंड ऑफ डेटा दैट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, और उसको प्रोसेस करने के लिए मुझे एरे स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई द कंपनी आस्क्स एरे एंड स्ट्रिंग। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बेसिकली सर्च से पता लगा मुझे कुछ ढूंढना है, राइट? तो बाइनरी सर्च इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यूजली कंपनी ट्राई टू आस्क। तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कंपनी ट्राई टू आस्क, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, वी ट्राई टू फिगर आउट द थिंग एट इन लेस एफर्ट, सो इंट्रोड्यूस होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया। द थर्ड एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डेटा। ऐसा हो सकता है, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड है उसको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो उसके लिए तो वो म्यूचुअल फ्रेंड हुआ ना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्राफ। तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, ग्राफ। या फिर गूगल मैप की बात कर लो। गूगल मैप के अंदर इफ अ पर्सन वांट टू गो फ्रॉम, सपोज ही इज इन दी हैदराबाद और वो उसको गोवा जाना है, तो हैदराबाद से गोवा जाने के बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस हो सकती है, फ्लाइट हो सकता है, कैब हो सकता है, पर्सनल व्हीकल हो सकता है, मे बी वो ट्रेन पकड़ ले, ऐसे बहुत सारे रूट हैं। अगर वो कैब या बाइक से जाता है तो उसके पास और बहुत सारे वर्टिकल खुल जाते हैं। विच वन इज द ऑप्टिमल? अब ऑप्टिमल किस बेसिस पे, ऑप्टिमल भी किस बेसिस पे, ग्राफ के अंदर ऑप्टिमल किस बेसिस पे? मे बी ट्रैफिक, मे बी द डिस्टेंस। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन बैंगलोर, इफ यू वांट टू, if you living in a very high density populated area, then 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको 30 मिनट लगते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम इफ यू आर लिविंग इन मे बी इन हैदराबाद और मे बी इन पुणे, तो आपको शायद 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 30 मिनट ना लगे, शायद 10 मिनट में कवर हो जाए यूजिंग सम पर्सनल व्हीकल, राइट? तो यहाँ 10 मिनट, वहां पे 30 मिनट। तो यानी कि इस जगह पर टाइम वैल्यूबल है, बैंगलोर में टाइम ज्यादा वैल्यूबल हो गया, जबकि हैदराबाद और पुणे के अंदर डिस्टेंस मैटर करेगा। तो जो मेरा ग्राफ है ना, वो मुझे इस तरीके से बताएगा कि भाई अगर आपको ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है पर टाइम लगेगा 2 घंटे। बट इन हैदराबाद, इन तो वो किस टाइप का रूट ढूंढेगा? वो उस टाइप का रूट ढूंढेगा जिसके अंदर डिस्टेंस और टाइम दोनों ट्रेड ऑफ हो जाए, टाइम भी कम लगे और डिस्टेंस भी कम ही हो, ज्यादा ना हो, मतलब 10 की जगह पे 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा, बट टाइम मेरा ना 2 घंटे से घटाकर 1 आवर तक पहुंचा दो, इतना कर दो। तो काफी अच्छा ट्रेड ऑफ है ये। तो इस टाइप के ट्रेड ऑफ होते हैं, तो ग्राफ के अंदर इस टाइप के ट्रेड ऑफ, बेसिकली इस टाइप के कंस्ट्रेंट पास किए जाते हैं। सो डीएसए इज ऑल अबाउट एरे स्ट्रिंग, बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ एंड ऑल अदर थिंग्स लाइक, इफ अब आपने सुना होगा कि यार हैश मैप भी तो होता है, वो क्यों नहीं बोला? ऑफ कोर्स आई एग्री, हैश मैप होता है, हीप होता है, रिकर्जन होता है, रिकर्जन के बाद लिंक लिस्ट है, एंड देयर इज अ अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टैक एंड क्यू होता है। बट मैं इन सबको ना टूल मानता हूँ, इन सबको मैं क्या करता हूँ, मैं टूल मानता हूँ। टूल क्यों? बिकॉज टू सॉल्व अ ग्राफ प्रॉब्लम आई हैव टू यूज हैश मैप और heap. To solve a dynamic programming, I have to use recursion. To solve binary search, मुझे सिर्फ array की जरूरत पड़ेगी. But to solve array or string problem, sometime I have to use hash map, sometime I have to use heap, और sometime I have to use stack and queue.
राइट। और लिंक लिस्ट तो इज अ डिफरेंट, मतलब लिंक इज अ काइंड ऑफ ग्राफ, इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, राइट। तो ना इन चीजों को सॉल्व करने के लिए मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे सीखनी ही पड़ेगी। तो दीज आर द टूल्स, इसको क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये जो चीज है वो एक्चुअल प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करेगी। सो डीएसए के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन दीज फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you have the working knowledge of all hash map, heap, recursion, linked list, stack and queue and other respective tools, but इतने में काम बन जाएगा। Now let's move to second important thing जिसके ऊपर आपको अब काम करना है, that is development side languages। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेवलपमेंट साइड लैंग्वेजेस की, तो उसके अंदर ना बहुत सारा चीजें हो सकती है। अब इसके अंदर ना ऐसा हो सकता है कि मे बी यार आपको पाइथन पसंद हो, मे बी आपको पाइथन में डेव करना पसंद हो, मे बी आपको जावास्क्रिप्ट करना पसंद हो। तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ यार, नोड कर लो, या तो पाइथन कर लो, या तो जावा के अंदर डेव साइड कर लो, पर किसी में कर लो, किसी एक में कर लो, किसी एक चीज को पकड़ के करो। अब इसके अंदर भी हमारे वर्टिकल बनते हैं। मे बी अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन वेब ऐप। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ वेब ऐप? दिस अ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जस्ट अ मिनट, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा स्क्रीन विजिबल है भी या नहीं। ये बता दो, जो अब तक जो मैं लिख रहा था स्क्रीन विजिबल थी ना? हाँ हाँ ठीक है फिर। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे ना आप देखोगे ना, ये गूगल मीट है, तो ये गूगल का एक नया फीचर अभी लॉन्च हुआ था बीच में। इसके अंदर क्या है ना, आप इसको ना सीधा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये तो दूसरा ऑप्शन है, शेयर दिस पेज। एक ही ऑप्शन आता है, एक्सट्रैक्ट करा, ओपन करा, ये मेरा गूगल मीट यहाँ खुल गया। ये क्रोम में नहीं है अभी, मतलब ये क्रोम का पार्ट है पर क्रोम में नहीं है। इस टाइप की जो चीजें होती है ना, क्योंकि अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ, जस्ट जस्ट कैन यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। आई डिडंट हैव टू इंस्टॉल गूगल मीट इन माय सिस्टम। मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेरा काम बन गया। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट? बेनिफिट की यार, मैं तो स्पेस बचा रहा हूँ अपना, चीज मेरी वेब पे पड़ी है, मैं बिना इंस्टॉल करे उसको अपने सिस्टम में लेकर आ गया। अब इमेजिन करो, जैसे वीएस कोड होता है एक, ठीक है, वीएस कोड है, अगर वीएस कोड भी ऐसा हो गया तो टाइम कितना बचेगा मेरे लिए, मुझे वीएस कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। इमेजिन जैसे कि वीएस कोड होता है ना, जैसे ये वीएस कोड है, तो ये वीएस कोड है, अब ये तो मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, इस वीएस कोड का इंस्टॉलेशन करा, आई इनपुट जावा देयर, आई इनपुट सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड सब इसमें डाला, तब जाके ये काम करने लग गया। तो अब ये सोचो, अगर किसी ने वीएस कोड इंटीग्रेट कर दिया वेब के ऊपर, अब किसी भी इंसान को वीएस कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। उसको जावा के ऊपर काम करना, सीधा जावा पे काम करना स्टार्ट कर देगा विदाउट इंस्टॉलिंग जावा इन इट। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट? इसका बेनिफिट समझाता हूँ मैं। तो चीजें मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट समझ में आएगा। बेनिफिट समझ में आएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, इसलिए रेलेवेंट है और इस जगह पे मुझे जाना है, मुझे ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट। ठीक है, पैसा तो ठीक है, मतलब कहने की बात लगती है, बट पैसा ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट लाइक काम पे पैसा मिले ना, तो ज्यादा मजा आता है। सो एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब सपोज मैं अपनी दिक्कत बताता हूँ, आज से 3 साल पहले मुझे क्या दिक्कत आती थी। आई हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट वीएस कोड, मुझे वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ता था, एंड देन उस पर मैं जावा डालता था, सीपीपी डालता था, फिर सम टाइम आई वर्क ऑन पाइथन, तो मैं पाइथन डालता था, सम टाइम आई हैव टू वर्क ऑन सी शार्प, तो मैं सी शार्प लैंग्वेज में बिल्ड कर डालता था, इंस्टॉल करता था, एंड देन सम टाइम्स ये करने के बाद हाँ मुझे नोट डालनी पड़ती थी, बिकॉज कभी कभार मैं नोट के कुछ स्क्रिप्ट लिखता था। सोचो यार, मैंने वीएस कोड डाला, इट्स सेल्फ गोइंग टू कॉस्ट 100 MB इन माई रैम। ये सब कम से कम मान लेते हैं, नाना करते भी 500 MB तो लेंगे ना स्पेस। मैंने 600 MB का स्पेस अपने रैम का ऑक्यूपाई करके बैठ गया मैं इन चीजों की वजह से। कल को कोई पर्सन आता है, वो एक सर्वर डिजाइन करता है, वो बोलता है भाई तुम्हारी सारी दिक्कत आज से मेरी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जावा, सीपीपी, पाइथन, सी शार्प सब कुछ तेरे सर्वर पे डाल देता हूँ, जो जो तुझे चाहिए। इन सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं वीएस कोड के साथ।
VS कोड डाल देता हूँ मैं तेरे क्रोम के ऊपर, और तेरे क्रोम को हर कोई एक्सेस कर सकता है। मतलब जो तेरा क्रोम है वो तो तू यूज एक्सेस कर ही सकता है, यूजर यूजर की तरह एक्सेस कर ले, और इसको अपने जो मैंने अभी आपको आइकन दिखाया था उस आइकन पे क्लिक करके अपने सिस्टम में लेकर आ जाओ। सो मेरा टाइम कितना बच गया, आई डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग। सेकंड थिंग, जैसे मैं अभी मैक पे काम कर रहा हूँ, कुछ महीने पहले मैं विंडोज पे काम कर रहा था, क्योंकि मैक तो अभी लिया है, उससे पहले तो मैं विंडोज पे काम कर रहा था। अब ऐसा हो सकता है C++ के जो प्रोग्राम है मेरे मैक पे कुछ अलग परफॉर्म करें और मेरे विंडोज पे अलग परफॉर्म करें, मे बी लिनक्स पे अलग परफॉर्म करें, उबंटू पे अलग परफॉर्म करें, ऐसा हो सकता है, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, सिमिलैरिटी आ गई, दुनिया की हर जगह पर मेरा प्रोग्राम सेम तरीके से बिहेव करने लगेगा। कितना बड़ा बेनिफिट है ये। अब आपको लगेगा ये तो आज तक बनी ही नहीं, बन चुकी है भाई, एग्जिस्ट करती है, कंपनियां यूज कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इसको इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास अपना खुद का VS कोड है जो कि इन्होंने इसी तरीके से इंटीग्रेट किया, और बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये इसका ऐसा है। ऑफकोर्स इसमें मैंने की फीचर नहीं बताया आपको, पर मैंने आपको एक हाई ओवरव्यू आइडिया दे दिया है। बट ये आउटसाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता अभी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टेक वेरी कॉस्ट, पर कोई बना सकता है इसको। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, ये टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करनी है, तो अब ये होता है वेब ऐप, जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि चीजें वेबसाइट पे मैंने वेब ऐप कर लिया। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एंड्रॉइड, आपको एंड्रॉइड के ऊपर काम करना है। अब अगला सवाल आता है लोगों के पास कि सर आई एम शुड आई प्रीफर एंड्रॉइड, शुड आई प्रीफर iOS। तो मैं उसको इतना बोलता हूँ, यार तू अपनी कैपेबिलिटी बता कि तू कैसा पर्सन है। कल को अगर मार्केट एंड्रॉइड की, अगर कल को मार्केट iOS की खराब हो गई, तो क्या तेरे को कम, क्या तू कम टाइम के अंदर एंड्रॉइड में स्विच कर सकता है? बोलेगा नहीं सर, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी iOS के अंदर, मैं iOS से बंधा हुआ हूँ, तो मैं एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो भाई iOS इज नॉट अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू, यू शुड गो फॉर एंड्रॉइड। वाई? बिकॉज देर इज अ वास्ट मार्केट फॉर एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की बहुत सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती है, iOS की बहुत लिमिटेड करती है। उससे पहले मैं उसको इतना बोलना चाहूंगा कि यार डोंट बाइंड योर सेल्फ टू द लैंग्वेज। आज जावा है, कल C++ पॉपुलर हो सकती है, कल मे बी पाइथन पॉपुलर हो जाएगी, कल इसके बाद क्या पता कोई चैट जीपीटी करके नई लैंग्वेज लॉन्च कर दे और वो पॉपुलर हो जाए अचानक से, उसका बूम आ जाए। तो डोंट बाइंड योर सेल्फ टू द लैंग्वेज, बाइंड योर सेल्फ टू द कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, न्यूटन्स के लॉस हमेशा सेम रहेंगे, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन की जा सकती है, लॉस हमेशा सेम रहेंगे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट से अपने आप को बाइंड करना है, ना कि लैंग्वेजेस के ऊपर, ना कि टेक्स्ट टैग के ऊपर। बट इफ यू आर इन द कॉलेज देन यू कांट फॉलो जस्ट द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बिल्ड सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। सो इफ यू आर इन द कॉलेज तो ट्राई टू फिगर आउट योर एक्सपर्टी एरिया, लाइक तुझे मजा किस में आता है, तुझे मजा किस में आ रहा है, एंड्रॉइड में, iOS में, या फिर वेब ऐप में। तो नंबर वन सजेशन, अगर तुम्हें नहीं पता किस में आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि वेब ऐप को एक्सप्लोर करो। बट इफ यू हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड दैट आई कैन एंजॉय कोडिंग इन अ वेब ऐप, और आई एंजॉय मेकिंग एप्लीकेशंस ऑफ एंड्रॉइड और मे बी iOS, तो उस हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज करके देख लो कि एंड्रॉइड में मजा आता है एंड्रॉइड करो, iOS में मजा आता है iOS करो। ठीक है, पाइथन में मजा आ रहा है, ML AI में मजा आ रहा है, ML AI करो। बट जितनी मैंने मार्केट देखी है भाई, मैं तो वेब ऐप को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। सेकंड, मैं एंड्रॉइड को देता हूँ। थर्ड जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ वो मैं देता हूँ ML AI टाइप स्टफ को, क्योंकि इसमें जॉब मिल जाती है, और ये द क्राइटेरिया टू रैंकिंग दिस थिंग्स इज इन डिपेंडेंट ऑन द इंडियन मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरीज। किसकी कितनी जॉब वॉल्यूम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कितनी सैलरी मिल सकती है। फोर्थ वन इज iOS, राइट। अब कोई मुझे यहाँ पे काउंटर बोल सकता है कि सर iOS के डेवलपर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। वेब ऐप के अंदर लोग बहुत ज्यादा है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है, वॉल्यूम और जॉब लग भी जाएगी। एंड्रॉइड के अंदर देयर लॉट्स ऑफ कंपनी आउटसाइड हु आर रेडी टू हायर यू, तो आपकी जॉब आराम से लग जाएगी। ML AI के अंदर देयर इज नॉट लॉट्स ऑफ कंपनी, बट ML AI के अंदर आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इस ऑर्डर में मैंने इसको कैटेगराइज करा। तो नंबर वन थिंग DSA, देन डेवलपमेंट साइड लैंग्वेज। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, सॉरी, दैट इज सिस्टम डिजाइन, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज LLD और HLD। LLD तो समझ लो आपका हो गया, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 कवर करा है तो LLD आपका हो गया, बिकॉज बिकॉज जब आप डेव कर रहे होगे तो आपने ना ऊप्स वगैरह पढ़ लिया होगा।
HLD is all about the high level design. High level design, let me give you example. सपोज आप लोगों ने स्प्लिट वाइज करके एक ऐप होता है, या फिर चलो और थोड़ा इजी सा लेते हैं, लिफ्ट तो यार हर किसी ने इस्तेमाल करी होगी, बिल्डिंग में लिफ्ट होती है राइट। तो कोई मुझे बोलेगा यार जो लिफ्ट है ना, मुझे उसका सिस्टम डिजाइन बता कैसे काम करता है। मतलब एक बिल्डिंग में ऐसे 10 लिफ्ट लगे हैं, 5 लेफ्ट साइड, 5 इस तरफ के, और उसके अपोजिट 5 लगे हुए हैं राइट, 5 इधर है 5 इधर है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, लिफ्ट अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है, ठीक है, और 25 लेवल की बिल्डिंग है टोटल, ठीक है। तो 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग है एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे टोटल 10 लिफ्ट है मेरे पास। मैं कोई भी बटन दबाता हूँ तो कौन सी लिफ्ट मेरे पास आएगी। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बटन प्रेस करा, एक लिफ्ट थी फ्लोर नंबर 5 के ऊपर, वो नीचे आने लगी ग्राउंड फ्लोर की ओर। एट द सेम टाइम 7th फ्लोर के ऊपर भी कोई पर्सन लिफ्ट में ऑन बोर्ड करता है और वो अपने आप को नीचे लाने लगता है, और ये 5th वाला रुक गया 3rd के ऊपर जाकर, तो 7 वाला पहले पहुंच जाएगा अब, ठीक है। तो किस किस लिफ्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है ना कि आपकी ये वाली लिफ्ट पहले आएगी, ये वाली लिफ्ट आ रही है, अचानक से नोटिफिकेशन चेंज होकर होता है कि अब ये वाली लिफ्ट आ रही है, ऐसा होता है। आपको सिस्टम डिजाइन करना है, कैसे करोगे, पूरा नहीं बनाना, कोड नहीं करना, बस मुझे बताओ कैसे करोगे। दिस इज कॉल्ड HLD, हाई लेवल डिजाइन, कि यार अच्छा ऐसे करेंगे, इस तरीके से उसका सिस्टम डिजाइन होगा। या फिर सेकंड एग्जांपल जो अब तक पूछा नहीं गया, मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कंपनियां नहीं पूछती है पर मैंने पूछना स्टार्ट कर दिया कुछ कुछ इंटरव्यूज के अंदर, डेट इज कि यार IRCTC जो कंपनी है बेसिकली रेलवे कंपनी है। तो जब हम यहाँ पे अपनी सीट बुकिंग करते हैं, ठीक है, जब जब मैं ऐसे चाहता हूँ कि यार मुझे ना जाना है, और मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया और मैं चाहता हूँ मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए स्लीपर क्लास के अंदर, तो किस ऑर्डर के अंदर वो किस तरीके से टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या ऑर्डर रखोगे। तो कोई बोलेगा बहुत सिंपल है, आप ऐसा करो, ट्रेन तो ऐसे होता है ना, ऐसा ट्रेन होता है, यहाँ से फिल करना स्टार्ट करो, जब ये डब्बा फिल हो जाएगा तो इसको फिल करेंगे, जब ये डब्बा फिल हो जाएगा तो इसको करेंगे, जब ये डब्बा फिल हो जाएगा तो इसको करेंगे। तो पता है मैं उसको क्या बोलता हूँ, क्या वो सब तो ठीक है, सपोज कर तेरा ट्रेन किसी ऐसे ट्रैक पे गया जो ऐसे करके मुड़ने वाला है, तेरे स्टार्टिंग के डब्बे के ऊपर मास प्रेजेंट था, इनर्शिया लगा, वो मुड़ गया, पीछे के डब्बे ना जो ट्रैक होगा उसे उतर जाएंगे, बिकॉज वहां पे मास था ही नहीं, तुमने सारा मास तो आगे डाल दिया। ऑफ कोर्स ये तो इट्स अ ह्यूज एक्सीडेंट। तो हाउ यू गोइंग टू ओवरकम दिस। सेकंड इज कि आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, मैं ठीक है करो इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल बर्थ, हम फिर पीछे पीछे को जाएंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसे करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए, मेक सेंस। देन अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाता है, इफ अ वुमेन या मे बी अ गर्ल ट्रेवलिंग अलोन इन द ट्रेन, सो वी हैव टू मेक श्योर कि उसको जो बर्थ मिले ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, मे बी ही शी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन टू द डेस्टिनेशन, बिल्कुल एंड टू एंड जा रही है वो लड़की। तो ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग जो भी ट्रैक है उसमें कई बार कुछ कुछ पैसेंजर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे उतरेंगे और नए नए पैसेंजर्स आएंगे। आई हैव टू मेक श्योर डैट कि हर बार वहां पे एक लड़की ही आए, ये भी मुझे मेक श्योर करना है, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर द सिक्योरिटी। हाउ यू गोइंग टू ओवरकम दिस। तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड HLD। यू हैव टू फोकस ऑन दिस। तो आपने देखा होगा HLD के अंदर मैंने आपसे कभी कोडिंग नहीं पूछी, मैंने आपको क्या बोला, मुझे कॉमन सेंस जानना है, मुझे नहीं ये नहीं जानना कि आप कोड कैसे करोगे, कॉमन सेंस बताओ कैसे करोगे, ये बताओ बस, कैसा डेटाबेस यूज करोगे एंड ऑल ऑफ द स्टफ। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर प्लेस होने के लिए, एंड सिनेरियो कभी भी चेंज करी जा सकती है। जैसे लिफ्ट वाले के अंदर बोलूं मैं, तो मुझसे से पूछा गया था, उसने अचानक से बोल दिया कि आपकी लिफ्ट चल रही थी, किसी फ्लोर पे रुकी, अचानक से एक पर्सन उसमें एंटर करता, लिफ्ट ओवरवेट हो गया। अब क्या करोगे, इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो क्या नीचे वाला पर्सन वेट करता रहेगा। तो अब नीचे जिस ग्राउंड फ्लोर पे जिस पर्सन ने बटन प्रेस करा है लिफ्ट के लिए, तो उसके लिए दूसरी लिफ्ट तो आनी चाहिए ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल्सो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है सिस्टम डिजाइन के अंदर। यहां तक मुझे बताओ क्लियर है आपको। कूल। सो वी कवर द 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, DSA, website, why we need website, and third one is why we need system design। ठीक है, why we need system design। अब मूव करते हैं कंपनियों को कैसे करें अप्रोच। ठीक है भाई, अब तो भाई मैंने देखो सारी नॉलेज गैदर कर ली, नाउ आई हैव द स्किल
यार अब लिफ्ट को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना इतने से सेशन के अंदर। मैंने आपको बस ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी कि क्या किस टाइप की चीजें होती है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहता था बस। सो नाउ आई हैव द इनफ स्किल विद मी टू अप्लाई एनी पर्टिकुलर कंपनी। अब मुद्दा ये उठता है यार अप्लाई कैसे करूं, मैं अप्लाई करता हूँ मुझे जॉब ही नहीं आती है, राइट? कैसे करें अप्लाई? तो देयर आर सम वेज टू अप्लाई ओवर इट। नंबर वन इज आप कुछ ऐप का सबसे पहले चलो दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वट स्ट्रेटजी आई फॉलो मैं वो बताना चाहता हूँ पहले। अप्लाई कैसे करना है? देखो, कुछ लोग होते हैं वो ना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। तो मैं यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 ओवर कॉन्फिडेंस मत समझना अपने आप को, ठीक है? कभी भी मत समझना, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपके पास सारा ज्ञान हो, कभी नहीं होगा। कोई ना कोई आपके ऊपर बैठा होगा जो कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, ठीक है? मैं भी नहीं कह रहा कि आई एम द परफेक्ट वन। मेरे ऊपर होगा कोई ना कोई, मेरा सीनियर है जिसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, मेरे सीनियर के ऊपर मेरा मैनेजर है, उसके ऊपर उसका डायरेक्टर है, उसके ऊपर उसका वीपी है, फिर एसवीपी है, फिर उसके ऊपर एक और है, फिर उसके ऊपर सुंदर पिचाई बैठा है, उसके ऊपर लैरी पेज बैठा है। तो कोई ना कोई तो है ही जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी उस चीज से रिलेटेड, राइट? तो कभी घमंड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, नंबर वन। और कभी भी ना ऐसे बेस्ट को टैकल मत करना। टू रीच आउट द बेस्ट ना, यू हैव टू टेक सेवरल स्टेप्स। जैसे कि मैं क्या करता था, अगर मुझे ऐसे एडहॉक तैयारी करनी हो जाए, मेरे पास तैयारी है बट मुझे ना इंटरव्यू देने की तैयारी नहीं है, बताए मैं क्या करूंगा? कुछ कंपनियां होती है, इंस्टा हायर करके है शायद, आई डेंट नो द स्पेलिंग, इंस्टा हायर करके एक है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। फिर कुछ कुछ एप्लीकेशन भी है जो ना आपको जॉब, कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऐप हैं जहाँ पे ना स्टार्टअप अपनी जॉब की पोस्टिंग डालते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एप्स जिसके ऊपर आपको जॉब की पोस्टिंग मिल जाएगी। और एक है naukri.com, और और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है? ये सारी आप बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे जॉब लो, मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि इन कंपनियों में अप्लाई करो, ठीक है? जैसे 2 लोगों से लेकर 30 लोगों की कंपनी होती है, दो तो कम कह रहा हूँ, लेट से 8 से लेकर 30 लोगों की कंपनी है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है। इस छोटी कंपनी में आपको पता आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको सैलरी शायद 8 या 9 या 10 या 12 ऐसे ऑफर की जाएगी। अच्छी बात है, इंटरव्यू दे दो। अगर नहीं हुआ ना सिलेक्शन तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आपको वैसे भी उस कंपनी में जाना नहीं था। आपने बस अपना इंटरव्यू दिया, सामने वाले ने आपको कुछ बोला, आपने सुना, आपने जवाब दिया, आप एम्बेरस हुए कि भाई मैं तो जवाब नहीं दे पाया, तो उस चक्कर में, एम्बेरसमेंट के चक्कर में, एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग न्यू, यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो आप पता है क्या करो, 8 से 30 लोगों की जो कंपनी होती है उन कंपनी में इंटरव्यूज दो। इसको मैं कहता हूँ स्मॉल कैप कंपनीज। ये बहुत ऐसे स्मॉल कैप भी नहीं, इसको पेनी स्टॉक कंपनी कहता हूँ मैं, कि भाई पेनी स्टॉक कंपनी के अंदर, ये पेनी कंपनीज है, इनके अंदर आप इंटरव्यूज दो एंड ट्राई टू गेट आइडिया कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। इफ यू आर एबल टू क्रैक एटलीस्ट 2 और 3 पेनी कंपनीज, इस मीन्स कि चलो भाई मुझे तो इंटरव्यू देना आ गया, लेट्स मूव टू समथिंग डिफरेंट। इतने में आपको ना एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको इंटरव्यू देने की आदत लग गई है। अब आप ना फ्लो में हो, फॉर्म में हो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 वीक लगेगा। इन ऐप के थ्रू ना आपको रोज कॉल आएंगी, रोज आती है कॉल। इसी ऐप के अंदर अपना उस हाई मिड कैप टाइप कंपनीज को कॉल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए जियो, ठीक है? या फिर नेटमेट्स हो गया, या फिर नेटमेट्स के बाद और कौन सी हो सकती है, जैसे आप फ्लिपकार्ट ट्राई कर सकते हो, चलो ठीक है, थोड़ा सा हायर कैप साइड चला गया। छोटे मोटे मतलब अर्ली एज फंडेड स्टार्टअप, ठीक है? तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, अर्ली एज फंडेड स्टार्टअप, इनमें इंटरव्यू दो, ठीक है? इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 200 से लेकर 300 के बीच में होती है, इतनी इंप्लॉयज की स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे इंटरव्यू दिया, इसको कह लेते हैं स्मॉल कैप। ये आपकी स्मॉल कैप कंपनीज हो गई। नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है? जैसे कि भाई रिलायंस हो गया, रिलायंस वाली जो कंपनी मिड कैप में काउंट कर लेंगे हम उसको, ठीक है? जियो हो गया, जियो के बाद फ्लिपकार्ट, क्रेड हो गया, क्रेड के बाद और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो सारी हमने मिड कैप में ले ली, ठीक है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जो पॉपुलेशन होती है 150 से लेकर मे बी 1000 प्लस तक चली जाती है।
यहाँ तक होती है, मिड कैप कंपनीज में दे दिया इंटरव्यू। अब चलते हैं लार्ज कैप के अंदर। लार्ज कैप कंपनीज, व्हाट इज द लार्ज कैप कंपनीज, लाइक जो आपकी ड्रीम कंपनीज थी। लार्ज कैप इज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, ठीक है, वॉलमार्ट, amazon, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर इन द लार्ज कैप कंपनी, जिसकी पॉपुलेशन से लाखों में होती है। वहां पे वहां पे आपको लाख प्लस इंप्लॉय मिलेंगे। ठीक है, ये लार्ज कैप कंपनी। अब देखो फायदा क्या है। एक पर्सन ना सीधा लार्ज कैप में जाता है, मतलब इसको ना ऐसे समझते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक पर्सन ने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो स्टॉक मार्केट में जाता है, जिसने आज तक कभी कुछ नहीं खरीदारी, ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा। डे वन पे जाता है, सीधा कुछ कहीं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसी वैसे हायर चांसेस है कि गलत तरीके से वो ट्रेड ऑफ ले ले, उसका नुकसान हो सकता है। बट अगर वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जाएगा ना, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे मार्केट परफॉर्म करती है। इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले पेनी स्टॉक में ट्राई कर ले यार, पहले पेनी कंपनीज में चला जा, 8 से 30 कंपनी के अंदर चला जा, इंटरव्यू दे ले, एक्सपीरियंस आ जाएगा। देन मूव टू दिस अर्ली एज फंडेड स्टार्टअप, इसके अंदर से एक जगह से ऑफर उठा ले, एटलीस्ट एक ऑफर उठा ले, इंटरव्यू मतलब एक्सपीरियंस और अच्छा आ जाएगा। देन मूव टू मिड कैप कंपनीज, यहाँ से एटलीस्ट एक ऑफर उठा ले। सो अब तेरे को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस टाइप के सवाल भी होते हैं जो पूछे जाते हैं, ये तरीका भी, ये एंगल भी है सोचने का। ठीक है, अब चलेगा उस कंपनी के अंदर जो तेरा ड्रीम है, अब वहां पर जा। ये आप पाथ फॉलो कर सकते हो। अब ना कुछ टाइम, अब ये पाथ पता है मैंने क्यों ऐसे डिबेक्ट करा, क्यों मैं ऐसा फॉलो करवाता हूँ। क्योंकि ना कुछ लोग बीकॉम से होते हैं, कुछ लोग ना ऐसे सेल्स बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं किसी दूसरे दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं। वो बोलते हैं भैया मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। भाई बिल्कुल जाना है, जाएंगे। पर माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट, मतलब मेरे ना रेज्यूमे को सिलेक्ट नहीं कर रही। मतलब एवरी टाइम ट्राई टू अप्लाई, आई गेट रिजेक्टेड। ठीक है, इवन आई डोंट इवन गिव अ चांस टू गेट इंटरव्यू देयर। बात तो तेरी भी सही है, बिकॉज यू डोंट हैव एन रेलिवेंट स्किल राइट नाउ। देन व्हाई नॉट टू ट्राई टू पेनी कंपनीज। दीज पेनी कंपनीज आर 8 to 30 पीपल्स। दे आर नो कि ये बड़े बड़े लोग इनको तो भाई अप्रोच नहीं करने वाले। मतलब जो जो इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े, वो इनको अप्रोच नहीं करने वाले, बिकॉज दे गोइंग टू चार्ज अ ह्यूज अमाउंट। वो बोलेंगे "हाँ, मुझे तो चाहिए 50 लाख की सैलरी, 30 लाख की सैलरी", वो नहीं दे पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाई नॉट टू ट्राई एट पेनी कंपनीज, एटलीस्ट वर्क देयर फॉर 2 to 3 months, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ पेनी कंपनीज में काम करके देख ले। तेरे को अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। पेनी कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी फंडेड के लिए जा रही है। इन दो सेक्टर में काम करने की कोशिश करो आप लोग, बिकॉज यू कैन easily अप्लाई देयर। they will consider you because they are also in the early stage and you are also in the early stage. if अगर वो आपको ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसको ऐसे डिफेंड कर सकते हो, भाई तेरी भी तो स्टार्ट ही है यार, तूने भी तो अपनी कंपनी में स्टार्ट ही करी है, मैंने अपना करियर स्टार्ट करा है, व्हाई नॉट टू गिव मी अ चांस। इफ यू आर नॉट गिविंग अ चांस एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम अदर इन्वेस्टर गिव यू अ चांस, देन दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ गुड ट्रेड ऑफ, राइट? नहीं, सही नहीं है ये। राइट, तो आप ऐसा वहां पे डिफेंड कर सकते हो, आप ऐसा मेल कर सकते हो, तो आपको वहां पे चांस मिलेगा। यहाँ पे सेल्स वाले हो चाहे बीकॉम कुछ भी हो, हर किसी को चांस मिलेगा यहाँ पर। इन जगहों पे एटलीस्ट 6 to 12 मंथ टाइप काम करो। नाउ यू आर, अब मार्केट स्टैंडर्ड को आप बीट कर चुके हो, बिकॉज यू आर इन दी मार्केट, यू आर स्पेंड ऑलमोस्ट 6 to 12 मंथ इन दी मार्केट। Now start preparing for the mid cap or large cap companies. Now target these companies. अब आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा, because this time Microsoft or Amazon doesn't have any like defending words कि यार you don't belong to a IT company or you don't belong to IT background। यार वर्ड इन IT कंपनी, आप बीकॉम के हो, भाई अब तो नहीं हो ना, 1 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ आईटी के अंदर, यू आर अ सेल्स गाय, अब नहीं हो, अब तो मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। सो दे डोंट हैव एनी वर्ड टू नेग्लेक्ट यू। नाउ दे विल सेलेक्ट, नाउ दे विल रेडी टू सेलेक्ट यू। एंड इस जगह पे भी पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। दीज गाइस आर एबल टू अर्न 12 LPA प्लस, कमा रहे हैं वो लोग। दिस अ डिसेंट अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन, 12 LPA इज अ डिसेंट अमाउंट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? मतलब ये उनको मैंने आंसर करा है जो लोग ये कहते हैं कि आई एम फ्रॉम सेल्स, आई एम फ्रॉम ब्ला 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 ब्रांच, एंड मेरे को दुनिया पूछेगी नहीं। समझ में आ गया कैसे पूछेगी दुनिया? दुनिया पूछती है, तुम गलत दरवाजे के पास जाते हो। ठीक है, गलत दरवाजे को खटखटाओगे तो कैसे खुलेगा? सही जगह पे जाओगे तो पूछेंगे। चलो लेट्स मूव टू, कोई फर्क नहीं पड़ता यार,
ग्रेजुएशन परसेंटेज कम है, कोई बात नहीं, तू तो फिर भी उससे अच्छा है ना जो सेल्स में है, राइट? वरुण, try to apply on Cred or Flipkart or Swiggy kind of companies, then approach Google, because right now Google is not hiring, right? So I have a two in automation testing. In automation testing, you can directly approach to that mid cap type companies. Mid cap means जो मैंने भी बताया था आपको, that Reliance, Jio, Flipkart, Cred, these kind of companies. शिवम यार, ये वाली चीजें तो आपको गीस्टर के वेबसाइट पे पता लग जाएगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो प्लेसमेंट के बाद पे करना है नहीं करना, दैट इज एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन दी वेबसाइट। नाउ लेट्स मूव टू लिंक्डइन साइड। यार थोड़ा सा लिंक्डइन बताने दो, लिंक्डइन बताने दो, ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने स्किल्स बता दिए, मैंने तरीका बता दिया किसको अप्रोच करना है, मतलब किसका गेट, किसके दरवाजे पे जाके ऐसे नॉक करना है, मैंने ये बता दिया। नॉक करते ही वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ना कि भाई क्या चाहिए, क्या है, तो वो दिखाना पड़ेगा आपको लिंक्डइन या रेज्यूमे कुछ। अब उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है? अब वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, लेट्स मूव टू दिस सेगमेंट। सबसे पहले तो यार ये एक टेम्पलेट भेज रहा हूँ। इफ यू वेरी कंफ्यूज बिटवीन द टेम्पलेट्स, तो इस टेम्पलेट को आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेम्पलेट जो चलता है, जिसको आप कोड करके ना अपने हिसाब से चीजें दिखा सकते हो, जैसे कि एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ दिखा दोगे, यहाँ पे लिंक्स दिखा दोगे, यहाँ पे अपना ग्रेजुएट कहाँ से हुए, अंडर ग्रेजुएट कहाँ से हुए, स्किल्स दिखा दोगे, एक्सपीरियंस दिखा दोगे, सारी चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, और अभी के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। प्लीज कॉपी दैट लिंक एंड सेव इट समवेयर एल्स, ठीक है? काम आएगा। चलो, एंड दिस इज अ लिंक्डइन जो कि आपको बनाना है, कैसे बनाना है ये देखते हैं। देखो यार, अब आपको लिंक्डइन पे ना सबसे पहले जो चीज लिखनी है ना, सबसे टॉप पे आपको चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। आपकी करंट कंपनी क्या है, इफ यू आर इन दी कॉलेज। अब जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं क्या लिखूंगा, कॉलेज से ले लिखूंगा कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट ऑफ NSIT, ऐसे करके लिखूंगा, इस कॉलेज का हूँ एंड इंटरेस्टेड इन दिस दिस थिंग्स, ठीक है? सॉफ्टवेयर टाइप चीजें लिखूंगा वहां पर, ठीक है? तो ये हेडलाइन आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी है। आपको बताना है कि भी इस कंपनी में काम करता हूँ, इससे पहले इस कंपनी में मैंने काम किया था, इससे पहले यहाँ पे कुछ काम किया था, ठीक है? फिर ये जो भी आपको सही लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बताओ। फिर अपने कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना जिससे वो आपको रीच आउट कर सकें, लाइक योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर, ठीक है? मतलब फोन नंबर इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग जो कि आपको मेंशन करना, बट यू शुड मेंशन योर ईमेल आईडी इन द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप यहाँ से एडिट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये तो अभी हटा देते हैं, वन वन सेशन तो अभी आपको जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग जो आपको मेंशन करनी है वो करनी है आपका आपका एक्सपीरियंस। इफ यू आर इन दी कॉलेज डजेंट मैटर, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल डजेंट मैटर, आपको हर जगह ये मेंशन करना है कि भाई कॉलेज में था ना तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज के तो मैंने ये किया। मेंशन योर फर्स्ट ईयर, ये चीज सीखी मैंने। मेंशन योर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इफ यू आर इन दी ऑटोमेशन, मेंशन योर ऑटोमेशन, जो मैंने करा यार, करो ना। मतलब वाई आप फ्लॉन्ट क्यों नहीं कर रहे हो चीजों को? करो, आपको जो चीजें आती है, ठीक है? किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोक रहा। यू शुड डू इट। यहाँ पे आके अपनी सारी चीजें, भाई मेरे इतना एक्सपीरियंस नहीं है पर मैंने सारी चीजें मेंशन करी है कि भाई मैं जब कॉलेज में था तो मैंने यहाँ पे काम किया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे थोड़ा काम किया, फिर मैंने एक NGO ज्वाइन करा था एट दैट टाइम। मैं बस वाई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल। अब किसी और का लिंक्डइन भी देखेंगे, हर किसी का लिंक्डइन मुझे ऐसा ही दिखेगा। तो सब चीजें मेंशन करो सो दैट आपके ना ऐसे टाइमलाइन दिख जाए कि इस बंदे ने ये करा था, ठीक है? दिस इज द NGO जहाँ पे वर्क करा, देन दिस इज अ कॉलेज सोसाइटी जिसके ऊपर मैंने काम किया था, दैट सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय मी। अब या मे बी वर्क इन अ सोसाइटी, तो मैं वो मेंशन करता। देन आई वर्क इन पेप कोडिंग, देन फॉर 3 मंथ्स आई वर्क इन देयर, फिर देन फॉर 8 मंथ्स आई वर्क देयर। तो वो सारी चीजें मेंशन करो यहाँ पर। उसके अंदर आपने क्या करा वो सारी चीजें यहाँ पे लिखो, स्पेसिफाई करो। ये आपका रेज्यूमे से कम नहीं है। इसके थ्रू इंटरव्यू कॉल्स आती है और मुझे आती है। मानो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मुझे इंटरव्यू कॉल्स आती है, ठीक?
इसके बाद यहाँ पे स्किल्स के अंदर अपनी चीजें मेंशन करो कि भाई ये स्किल्स है और ये चीजें मैंने कर रखी है। जितनी भी स्किल्स है आपके पास, जो भी स्किल्स आपके पास है सारी लिखो। वह डेटा स्ट्रक्चर आता है, एल्गोरिथम आता है, जावा आता है, C++, पाइथन कोर वगैरह वगैरह, जो भी है आपको जो भी चीजें आती है वो लिखो यहाँ पर। एंड इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो, ठीक है। एंड देन अपने कोर्सेज बता दो, अगर आपने कोई कोर्सेज करे हैं तो बस। इस और उन कोर्सेज जो भी आपने करा है और जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट के लिंक यहाँ पे डाल दो। एट द सेम टाइम ट्राई टू मेंटेन योर गिटहब। एट द सेम टाइम ट्राई टू मेंटेन योर, अपना एक गिटहब मेंटेन करने की कोशिश करो, जिसके अंदर ना यहाँ फ्रंट के अंदर टोटल कितना आते हैं, 6 आते हैं। अपने वो प्रोजेक्ट जो भी आपने काम करा है, चाहे उस छोटा सा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, इरिस्पेक्टिव, अगर आपने वेबसाइट भी बनाई है ना, प्लीज प्लेस इट हेयर, प्लीज प्लेस इट हेयर। एवरीथिंग जो भी आपने काम करा आपके गिटहब पे होना चाहिए, ठीक है। अब देयर सम काइंड ऑफ कंपनी रिस्ट्रिक्शन, अब मैं गूगल का काम तो नहीं डाल सकता ना यहाँ पर, बट जो डाल सकता हूँ, जो भी चीजें मैंने करी वो तो करूंगा ना, वो तो रखो। सो एटलीस्ट यू शुड प्लेस योर वर्क देयर। एट द सेम टाइम आपका गिटहब और लिंक्डइन सिंक में होना चाहिए, ठीक है। अब वो सब कुछ आपका सिंक में होना चाहिए, ठीक। अब ये तो चीजें हो गई, लिंक्डइन बनाना कैसे है, लिंक्डइन से जॉब कैसे ढूंढना है, अब ये देखते हैं। देखो कैसे ढूंढते हैं जॉब, ये देखते हैं। सपोज करो मुझे ना प्लेसमेंट चाहिए अमेजोन के अंदर, तो मैं ऐसे लिखूंगा अमेजोन, और देखते हैं यार कैसे ढूंढना है, बता रहा हूँ। मुझे भी प्लेसमेंट चाहिए अमेजोन के अंदर, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं जानता मैं अमेजोन से रिलेटेड। तो मैं देखता हूँ भाई ये भाई साहब ने क्या करा है। अच्छा, ये 2 साल, अभी इसने कुछ 5 महीने पहले ज्वाइन करा है। तो हम डैम श्योर इसने 5 महीने पहले ज्वाइन करा है ना, तो इसने ना एक पोस्ट पक्का निकाली होगी जहाँ पे इसने अपने HR को थैंक्स किया होगा। आइडियली करना चाहिए। देखो इसका बिल्कुल सेम सही है, तो इसने पक्का पोस्ट निकाली होगी। अब इसके पोस्ट पे देखते हैं। जैसे इसने गूगल का दे रखा है, ये देख रहे हो, इसका गूगल का पोस्ट है। मुझे नहीं पता था भाई ये कौन है, मैं भी नहीं जानता, आपके सामने सर्च करा है। तो इसने बताया कि देखो आई एम सुपर एक्साइटेड अनाउंस दैट, मैं यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई रिक्रूटर दिस एंड दिस। मुझे मिल गए रिक्रूटर्स जिसने इस भाई को हायर किया। ठीक है भाई, इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, इसको भी भेज देते हैं। ये पहले से ही कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों को भेज दिया कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब नहीं, ये नहीं है। अब ये जब मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, मैं इनको मैसेज कर दूंगा कि मुझे आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, और मैंने देखा है कि आप रिसेंटली हायरिंग कर रहे थे, तो क्या आप मुझे कंसिडर कर सकते हो। दिस द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड। ऐसा हो सकता है 10 में से ना आपको 4 या 5 लोग ऐसा ना करें, मतलब ऐसा पोस्ट ना निकालें, तो 4-5 ही होंगे, 6-7 तो निकाल रहे हैं। ट्राई टू ट्रैक दैम। गॉट इट। यहां तक की बात समझ में आई। मैं एक बार चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ यू नो हाउ टू पिक HRs or maybe actively hiring recruiters of any company। देखो मुझे भी नहीं पता, जब मुझे कुछ बोलोगे ना मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब लेना है और कंपनी अच्छी है, अच्छी मतलब ऐसे अच्छे खासे एम्प्लॉयज हैं, मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा, मुझे हार्डली 5 मिनट लगेगा पता लगाने में उसमें कौन सा रिक्रूटर एक्टिवली हायरिंग कर रहा है। रिक्वेस्ट भेजूंगा, बात करूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो भाई यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब सेकंड थिंग जो अब आपको मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है आपको ना पोस्ट निकालना होता है हर बार जब भी आप कुछ करो ना। मैं अगेन चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ, फिर बाद में करेंगे ऑन। जब भी आप पोस्ट निकालो ना, ट्राई टू टैग पर्सन इन इट। ट्राई टू टैग पर्सन। पर्सन को टैग करने से क्या होता है, आपकी रीच ना बहुत इंसेन जाती है, बहुत ज्यादा इंसेन इंसेन पहुंच जाती है। जैसे मेरे को अगर मैं कोई एग्जांपल दिखा पाऊँ आपको,
जैसे इसकी देखो 29,000 के अराउंड रीच गई है। मैं आपको रीच दिखाना चाहता हूँ कैसे रीच किस पे डिपेंड करती है। जैसे एक पोस्ट निकाला था, इसके अंदर मैंने बहुत लोगों को टैग किया था, बहुत सारे लोगों को टैग करा था, और उनके बारे में बताया था कि यार अंकुर सिंगला सर थे, इनको टैग करा था, ये रंजीत जो है ये मेरा रिक्रूटर था, इसको टैग करा था, ये मेरे दोस्त थे जो तब मेरे साथ थे तो उनको मैंने टैग करा था। इसकी रीच काफी इंसेन गई थी, इसकी अच्छी अच्छी खासी रीच गई थी। तो टैग करने से ये चीजें इफेक्ट आती है, जिसमें जो सबसे अच्छा इफेक्ट आया था मेरा इनकी वजह से आया था, क्योंकि इनकी अच्छी खासी रीच है। ठीक। तो और मैंने भी देखो यही स्ट्रेटजी लगाई है। अगर आप ये वाला पोस्ट पढ़ोगे, मैं आपको पोस्ट का लिंक देता हूँ, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, मैंने भी वही काम किया कि भाई मैंने पहले स्मॉल कैप कंपनीज में काम करा, फिर मिड कैप में गया, फिर लार्ज कैप में गया, फिर मेगा कैप में गया। सो फर्स्ट आई क्रैक आरजू, देन नेटमेट्स, बेसिकली रिलायंस रिटेल, देन आई क्रैक अमेजोन, पेपाल एंड गूगल, ऐसे करके गया, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसे करके गया था मैं भी। मैंने ऐसे सीरीज में ट्रैवल करा, ऐसे नहीं कि एक बार में जाके इसको टैकल कर दिया कि चलो गूगल चलते, नहीं। थोड़ा एक्सपीरियंस तो ले लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। इस हमेशा बेटर होता है जब भी आप कुछ पोस्ट निकालो ना, वट एवर द एक्टिविटी यू परफॉर्म, प्लीज पोस्ट इट ऑन योर लिंक्डइन। ऐसा शिट नहीं प्लेस करना, अच्छी चीज है, मतलब जो आपको लगे कि ही हाई रेलेवेंट है दुनिया के लिए, तो दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं, फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ, वो डालो लिंक्डइन के ऊपर। टैग करो लोगों को, टैग करो गिगस्टर को, टैग कर दो मुझको, कर दो टैग। अगर आप किसी और पर्सन को जानते हो जो अच्छा यूट्यूबर है, उसको टैग कर दो, किसी को भी टैग कर सकते हो। बस टैग करो ताकि आपके पोस्ट को रीच आए। टैग करने से क्या होगा, मेरे फीड में दिखेगा, मैं अगर मैंने लाइक करा तो ऐसा होगा कि अब जो मेरे फीड के लोग हैं ना उनको भी दिखेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड कोई आपको मना नहीं करेगा टैग करने से। ठीक है। तो टैग कर सकते हो, ये पक्का करना, फीड के ऊपर जाके लोगों को टैग जरूर करना। तो जैसे गीक्स्टर टैग कर दिया करो, गीक्स्टर टैग करने से आपको फायदा मिल जाएगा, जो गीक्स्टर की रीच होगी वो आप तक भी पहुंचेगी। अब गीक्स्टर में ऐसा होगा कि यार अब बहुत सारी जो कंपनियां हायरिंग करना चाहती है वो गीक्स्टर को फॉलो करती होगी ऑफकोर्स। तो अब आपने टैग करा, तो अगर आपने कोई रेलेवेंट चीजें डाल रखी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप तक भी पहुंचेगी, तो वो उन कंपनी तक भी पहुंचेगी एट द सेम टाइम। ठीक है। अपना लिंक्डइन आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी। ये तो यहाँ तक की बात, तो हमने क्या क्या देख लिया, मैंने आपको बता दिया स्किल्स कैसे गैदर करनी है। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्किल्स गैदर क्यों करनी है वो वाली, और किस चीज़ से रेलेवेंट है। सेकंड चीज इसके अंदर हमने देखा था डीएसए, वेब वेब डेवलपमेंट, एलएलडी, एचएलडी। फिर हमने एक चीज और देखी थी, लेट मी थिंक, हमने क्या देखा था, कैसे अप्रोच करना है कंपनी को, कौन सी कंपनी को कब अप्रोच करना है, और अगर मेरा बैकग्राउंड ये पर्टिकुलर है तो। राइट। ये भी आपको बता दिया। थर्ड, लिंक्डइन के ऊपर रिक्रूटर को कैसे हम अप्रोच करें और अपना लिंक्डइन कैसे बनाए, ये बता दिया आपको। लिंक्डइन के साथ साथ गिटहब बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, तो मैंने लिंक्डइन पे आपको चैट पे भेजा है, आप ये देख सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैंने अभी भेजी है। और एट द सेम टाइम आई वांट यू टू यार पोस्ट ओवर लिंक्डइन एंड टैग पीपल्स, टैग एनी पीपल पर टैग करो। टैग करने से रीच बढ़ेगी आपकी। अब मैं ना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, अपने अपने क्वेश्चन सोच लो पहले ढंग से दिमाग में, फिर मैं उसका एक एक करके आंसर करने लगूंगा। ठीक है। चलो ओपन कर दिया चैट बॉक्स, अब आप पूछ सकते हो। यार बताया ना, डीएसए के अंदर सिर्फ वो चार जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है उनके ऊपर काम करो। एल्गोस बेसिक बेसिक जो होते हैं वो सीख लो बस। बिल्कुल इंटर्नशिप के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, बट कम चांसेस होते हैं इंटर्नशिप लगने के, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो। या टू ज्वाइन गूगल, इफ यू डजंट हैव अ लाइक गुड कॉलेज बैकग्राउंड और एनीथिंग, तो वो प्रोसेस फॉलो करो जो मैंने बताया था, मिड कैप स्मॉल कैप वाला। उससे बहुत इजी रास्ता है। यार आफ्टर 2 क्वार्टर बेसिकली 6 महीने बाद रिक्रूट करना स्टार्ट कर देगी कंपनी। इफ यू गेट द ऑफर, इफ द ऑफर इज बेटर, देन ट्राई टू फिगर आउट सम बेटर ऑफर, और अगर अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा तो उसको ज्वाइन कर लो।
कोडिंग करके तो लॉजिक बनेगा शगुन। हाउ टू टेक इंटर्नशिप फॉर एक्सपीरियंस। व्हाई यू नीड इंटर्नशिप आफ्टर एक्सपीरियंस? सीधा SD1 लग जाओ। इफ यू आर इन द फाइनल ईयर देन, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लग रही है, देन इन छोटी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, ये आपको हायर कर लेंगी। इफ यू आर इन द कॉलेज स्टिल हायर कर लेंगी। और बाकी ना कुछ कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है कि पर्सन शुड एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, तो उसको कॉलेज से बाहर होना जरूरी है। यार देखो यार, अभी गुप्ता, चाहे रिसेशन हो चाहे कुछ भी हो, पर्सन की सेफ्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसको अपने ऊपर कितना भरोसा है। जैसे अभी गूगल में इंडिया में रिसेंटली मेरे 3 दोस्त अभी ले ऑफ हुए हैं। ठीक है, अब वो तीनों बहुत बहुत औसम लोग हैं। उनमें से एक पर्सन वो है जिसने कोड शेफ बनाया था, मतलब कोड शेफ का पूरा सिस्टम डिजाइन करा था, पूरा कोड करा था। एक पर्सन वो है, वो बंदा ले ऑफ हुआ है। और काफी काफी क्लोज दोस्त है, मैं उसके साथ पार्टी जाता हूँ, क्लब जाता था उसके साथ। तो काफी क्लोज दोस्त था वो मेरा। अब वो ले ऑफ हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस दिन ले ऑफ हुआ वो बस उस दिन वो जाके सो गया। फिर नेक्स्ट डे कहता है कि कोई बात नहीं यार, ले ऑफ ही तो हुआ है, आई विल एबल टू फाइंड आउट न्यू न्यू जॉब। अगले दिन बंदा खुश फिर से, उसको पता है जॉब लग जाएगी। सो इन रिसेशन यू आर सेफ, ऑफ कोर्स यू आर सेफ, अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल है। और डजेंट मैटर फार्मेसी के हो आप, किसी के भी हो, आपको बस वो चीज़ें फॉलो करनी है। हाउ टू प्रैक्टिस कोड। आप लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, गीक्स्टर है, यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। गीक्स्टर के कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज बाय कर सकते हो। उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लगेगा। देखो अगर अब ना, अगर पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो ना तो उसका फायदा ही होता है, हमेशा हमेशा फायदा होता है। एक पुश मिल जाता है, फिर आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे किस फ्लो में मुझे जाना है। हाउ टू गेट रेफरल फ्रॉम गूगल, अभी तो बताया यार। एम लिंक्डइन पे जाओ, पर्सन ढूंढो, उसके रिक्रूटर को अप्रोच मार दो, सिंपल। रिक्रूटर से अच्छा रेफरल कौन दे सकता है? फ्रंट एंड हैव अ ब्राइटर करियर, ऑफ कोर्स यस दे हैव आउटस्टैंडिंग करियर इन Amazon। Amazon के ऊपर बहुत अच्छा करियर है, वॉलमार्ट में बहुत अच्छा करियर है उनका। राजीव यार, अगर तेरे को तो खुद पे भरोसा तो पक्का मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू फाइंड द कंपनीज एंड विच इज प्रेजेंट राइट नाउ, जो इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है बाहर। अरिंदम, एक बार दोबारा बताना क्या डाउट है आपका। मैं अरिंदम का देख लेता हूँ। मिस हो गया शायद मेरा आपसे डाउट। आई हैड इसको, हाउ कैन वी नो इफ कंपनीज आर हायरिंग। करियर वेबसाइट पे जाके, करियर वेबसाइट पे जाकर पता लगेगा कंपनी हायर कर रही नहीं कर रही। मनीष, बिल्कुल उनका ब्राइटर फ्यूचर है। इज देयर एनी यूज ऑफ ओपन एआई और API इन ग्राफिक प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री? अब तक तो मैंने नहीं देखा यार, ऑफ कोर्स यूज में ला सकते हैं निंदम, ला सकते हैं, बट अब तक इनको ग्राफिक करियर में तो मतलब लोग यूज करते हैं अपने अपने काम के लिए, बट ना ऐसे। अब जैसे कोई बोलता है कि ओपन एआई पूरा रिप्लेस कर देगी, नहीं कर पाएगी, वो उसको स्केलेटन दे सकती है, चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स इससे कुछ कुछ वगैरह जाती है, पर ग्राफिक के अंदर मैंने ऐसा जिसका यूज नहीं देखा अभी तक। यार अंकित, देर आर एप्स जो ना हायरिंग में आपकी हेल्प करते हैं। उन एप्स को आप जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि जैसे अब मान लो गिगस्टर में कुछ कोर्सेज हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, वो आपको पढ़ाने के बाद आपको प्लेसमेंट करवाते हैं। तो कंपनी आपको लाके देते हैं। अगर आप ऐप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। आफ्टर आफ्टर द सक्सेसफुल कोर्स वो आपको कंपनी लाके देंगे, आपका इंटरव्यू करवाएंगे उसके अंदर। ये आप कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट इज इनफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग, यस ऑफ कोर्स इट इज इनफ। इंटर्नशिप कंपनी का नाम सजेस्ट मी। या इंटर्नशिप कंपनी जैसे क्रेड में इंटर्नशिप लग सकती है आपकी, स्विगी में लग सकती है, वॉलमार्ट में लग सकती है, नेटमेट्स में लग सकती है, नेटमेट्स के बाद पेटीएम में लग सकती है, जियो में लग सकती है, देयर लॉट्स ऑफ कंपनी। विशाल, आपको अपना रेज्यूमे भरना है, बस इतने प्रोजेक्ट मेंशन कर दो कि आपका रेज्यूमे कंप्लीट फिल दिखना चाहिए। अंजलि, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर right now. If you are good enough in data structure, then go for the CP. I'm not sure about a mankind, yaar. By practicing, you can improve anything. So coding skill भी practice से improve होगी. You have to give contest. Yeah, 1 month internship is enough. But 1 month में क्या ही सीखने को मिलता है यार, कुछ भी नहीं मिलता। ओके यार, अब मुझे जाना पड़ेगा यार। I have to do some other things. ठीक है।
कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेरी, अभी मुझे निकलना पड़ेगा। एमएल के प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है यार। इट्स career gapping doesn't matter at all. Just you have a relevant statement to defend it. ठीक है शिवम। ओके गाइस, बाय बाय।